So K. Krishnamurthy ji has been suffering from stage 4 COPD. Okay, and he's fairly old person. Why, what is the reason why he's got into something like COPD, and what does he need to work upon on his system so that he can come out of it? I'll explain it in three different ways. Basically, his Deha Bala is weak. What does it mean? One thing. Now he is suffering from lot of Vata Vikara in terms of Ayurveda. Now, what does that mean? And the third thing is a cardiac and lung coordination is weak. In three ways I have explained. So what basically it means, if we concur it in terms of something practical that can be done. So I'll give you a little formula through which the vata can be controlled. The second thing, dehabal can be attained, and the third thing, lung and heart coordination can happen. So there is a formula. What is the formula? 1:4:2. If you inhale for a certain number of counts, say you inhale for a count of 8. Now, if you are able to hold for a count of 4 times more than 8, 32 count, and exhale for a count of 16. If you achieve this, you will see these three things will start getting solved. Now, this is just from one perspective I have defined a diagnosis. And we say this is Shadanga Pratishtha. We established 6 such balas in the body. Because of which, the first thing first, the Dakshin Bala or the heart strength, you can rejuvenate the heart strength. You can regain the heart strength. You can increase the heart strength. Heart and lung function in coordination. So this Dakshin Bala also implies for the lung capacity. Now, Vyana factor is weak. As I said, Vata, Dosha, Vyana factor where the exhalation part gets included. Exhalation जिसका छोटा होगा ना उसका व्यान कमजोर होता, right? And so I've given you a formula, and I said Deha Bala, but not only Deha Bala, there are 6 balas: Deha Bala, Dhatu Bal, Agni Bal, Dosh Bal, Mano Bal, Ojas Bal. We need to increase all of them. Is TC Verma, TC Verma, can I see you? Mr. TC Verma, can you put on your camera? Mr. TC Verma? Okay, not able to spot him. TC Verma, can you come to the camera, please? Just give me a moment. थोड़ा चेहरे की तरफ कैमरा लाएं, थोड़ा आपका चेहरा दिख नहीं रहा है वर्मा साहब. ही सफरिंग फ्रॉम ILD. ही सफरिंग फ्रॉम ILD. सर वर्मा जी, If प्लीज you शो योर face, फेस. हाँ, if you face towards light, लाइट की तरफ में देखेंगे ना तभी मैं देख पाऊंगा आपको, और तभी कुछ किया जा सकता है, आपके बारे में बताया जा सकता है। मच बेटर. थोड़ा सा हाँ, यहीं पे रुकिए, यहीं पे रुकिए. इनकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन, बॉडी में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है। इसका मतलब हुआ कि आपका लिवर फंक्शन भी जो है हैम्पर्ड है, वीक है। सो लिवर फंक्शन भी वीक है और मेटाबॉलिज्म भी वीक है। सो द मेटाबोलाइट्स विच आर फॉर्मिंग, भोजन जो इस्तेमाल कर रहा है बॉडी, उसमें वो अच्छे तरीके से नहीं यूज कर रहा, टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं। तो जब हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो टॉक्सिन है ना वो ज्वलनशीलता पैदा करते हैं, है ना, वो ज्वलनशीलता पैदा करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, अपने शरीर को का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये ट्रिकी है, आपके केस में ट्रिकी है। आप जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, शरीर की गर्मी बढ़ेगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी, तो उसको फिर ठंडा करना पड़ेगा, दोनों साथ में करना पड़ेगा।
तो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? लेकिन क्वेश्चन ये आता है, मेटाबॉलिज्म कैसे? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। जठराग्नि कमजोर है, तो उसको इस्तेमाल करने की क्षमता का मतलब क्या होता है? आ, जोर लगा पाना अगर आपका बढ़ जाए। ऐसे मान के चलिए कि मजदूर जो होता है ना, वो जितना भोजन कर पाएगा, आप उतना नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है? एक मजदूर का शरीर दिन भर जोर लगाता है, और जोर कैसे लगाता है? सांस रोक के। तो सांस रोकने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म, ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। आपकी सांस रोकने की क्षमता बहुत कमजोर है, आईएलडी तभी होता है। और सांस रोकने की क्षमता लंग की कैपेसिटी भी होती है, दोनों एक ही है। तो उसको आप बढ़ाना बहुत जरूरी है। आईएलडी में आखिरकार स्टेरॉइड पे आ जाते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है इसका। ठीक है, क्योंकि दवाई आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकती, दवाई आपकी जठराग्नि नहीं बढ़ा सकती, दवाई आपका टॉलरेंस नहीं बढ़ा सकता। ये तीनों चीजें आपको खुद शरीर का बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके शरीर की कैपेसिटी, ये तीनों ही चीजें जो हमारे मॉड्यूल है उसमें एम्बेडेड है, उसके अंदर बिल्ट इन है ना। और आप देखेंगे, आपको तो मालूम ही होगा, अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो कभी ठीक लगता है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है सिचुएशन, फिर और खराब हो जाती है सिचुएशन, फिर आपकी दवाइयां बदल जाती हैं, कुछ नई दवाइयां आ जाती हैं। इसका कोई ऐसा इलाज होता नहीं, दवाई से नहीं होता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दवाई से नहीं होता, मगर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Thank you, Swamiji. I'll take one more person, K. Mohini Patro. K. Mohini Patro, are you there? K. Mohini Patro. I now lots of hands will go up, but this can't happen for everyone. K. Mohini Patro, we are trying to take a variety of problems. Okay, so K. Mohini Patro, are you able to hear हाँ me? सर, हाँ सर। But हाँ, you will need to यस put on सर। your camera, otherwise we can't do this for you. If you can't put on your camera, then let it be, ma'am. Uh, can you put on your camera? Otherwise, I'll take somebody else. Okay. All right. So, ma'am, I think, all right. So there is a autoimmune condition involved over here. Plus, there are other issues like gastric, back pain, thyroid, etc. Ma'am, can you यस सर। just adjust your camera so that we can see more of your face? आपका tilt your phone. Yes, 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 yes. So she has autoimmune condition, she has gastric problems, and I think PSS थायराइड। is also there. So therefore thyroid, back pain also. आपका दो चीजें बताऊंगा। आपकी सांस लंबा लेने की कैपेसिटी नहीं है, कमजोर है। बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता ठीक से, तो चीजें फैलेंगी नहीं। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फैलेगी नहीं। तो ये दो चीज देखिए, थायराइड भी यही कंडीशन, शरीर के अंदर कोई चीज फैल नहीं रही ठीक से। तो अगर फैलेगी नहीं, ब्लॉक्स होंगे, तो पेन बढ़ जाता है शरीर का। दर्द के फैक्टर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और डेफिशिएंसी आजकल कह रहे हैं कि ये कैल्शियम कम है, कैल्शियम खाओ, विटामिन कम है, ये कम है, बी 12 कम है, ये खाओ वो खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। वो सभी का सभी एब्जॉर्प्शन सर, कम। ऑस्टो मेरे टेस्टिंग में ऑस्टोपेनिया निकला था। ऑस्टोपीनिया। ऑस्टो हाँ। ऑस्टोपीनिया आया था ना। एक तो देखिए, एक तो ये चीज है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। हाँ सर, पेम्पिगस वल्गारिस था, मैं रिटोक्सिमाब इंजेक्शन 2 ले लिया है। अच्छा, वो उसके इंजेक्शन। बाद से अभी उसके मैंने बाद से आपको, बहुत अच्छा तकलीफ तो, हुई। हाँ ऑस्टियोपीनिया बता ना। अभी मैंने क्या बताया? आपका एब्जॉर्प्शन कम, हम्म। बोला ना एब्जॉर्प्शन तो कम। क्यों हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया, आपका इनहेलिंग कैपेसिटी कम है बॉडी का। इनहेलिंग कैपेसिटी कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो मिनरल डेंसिटी अपने आप ही कम होगा। ठीक है, इसको कोरिलेट करके देखो आप।
एब्जॉर्प्शन कम होगा, बॉडी में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा, तो मिनरल डेंसिटी कम आएगा। आप देखोगे डेफिशिएंसी और भी टर्म्स में दिखाई दे सकता है। ऑस्टियोपीनिया एक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी कई लोगों को होता है। ये दोनों मिनरल डेंसिटी हो चाहे बोन डेंसिटी कम हो रहा हो, वो दोनों के दोनों एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हो। दूसरा चीज है, जो थायराइड का कंडीशन होता है वो क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बॉडी में वीक है। आपके बॉडी में कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, तो क्या क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग होगा, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है ना, फैट जो है वो बढ़ता जाएगा। इस तरीके एक जगह पे जमावट, वाटर रिटेंशन होता है कई जगह पे। फीमेल्स में ऐसा भी हो सकता है कि उनका यूट्रस में पानी डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा भी होता है कई लोगों में। तो क्यों ऐसा हो रहा है, दो चीज बताया, एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं है, इसी को कोरिलेट करके बताया कैसे बढ़ा सकते हैं। इनहेलिंग कैपेसिटी जो आपकी बॉडी की, अगर वो बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। दूसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर जो बताया कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, फैल नहीं। बॉडी के अंदर जब भी हम प्रेशर जनरेट करते हैं तो चीजें फैलती हैं, प्रेशर में ही तो फैलती है चीजें। प्रेशर बिल्डअप होगा तो फैलेगा चीज। तो ये दो काम अगर करना शुरू कर दिया, इसी को दूसरे पक्ष में हम क्या कहते हैं, धातु बल कमजोर है आपके शरीर का, और आपके शरीर के का मेटाबॉलिज्म, ये एब्जॉर्प्शन, उसमें स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन वीक है। ये दो चीज बताए, और दोनों ही कुंभक से होगा। आप सांस को रोकेंगे तो उससे क्या होता है, इनहेलेशन भी लंबा होता है, आपका रिलैक्सिंग कैपेसिटी भी, एक्सहेलेशन भी इजी होना शुरू हो जाएगा। लंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मगर जैसे कहते हैं ना, इनहेलेशन को अगर लंबा करना है तो ऐसे खींच के नहीं, आप कितना रोक सकते हैं उसके हिसाब से इनहेलेशन कैपेसिटी बढ़ती जाए। तो कुंभक जो है ना, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ है बेसिकली। अगर इसको ठीक से प्रैक्टिस किया जाए तो आप देखेंगे ये चीज बहुत आसानी से चली जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक और तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने बताया आपका इनहेलेशन कम है, जो मैंने बताया, एक तो बताया इनहेलेशन कम है। इनहेलेशन कम होने के कई कारण हैं। इनहेलेशन से बॉडी के अंदर रीजनरेशन होता है, एक्सहेलेशन से डिटॉक्स होता है। ये दो सिंपल तरीके से, इन दोनों का इम्बैलेंस होगा तो उसे भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। उसका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनहेलेशन भी। अब दूसरी बात, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक और कारण मैं बता देता हूं। इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म, ये दो आपके शरीर के फंक्शन, मेजर फंक्शन मान के चलो। एक तो भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, भोजन को पचाने की क्षमता, और दूसरा कोई खतरे से निपटने की क्षमता, ये दो। तो जब भी शरीर में खतरा आएगा तो आपका शरीर ना खाने की तरफ नहीं जाएगा। अगर खतरा आता है तो आप किचन बंद हो जाता है, किचन की तरफ ध्यान नहीं देते, खतरे से निपटने की तरफ में ध्यान देते। तो जब भी शरीर के अंदर खतरा आता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म नीचे जाता है। कैसे, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सभी को यहाँ पे सर्दी जुकाम, कोरोना वायरल इन्फेक्शन हुआ, बच्चों को, बच्चे बचपन में तो काफी हो जाता है, बच्चों को तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होता है, आपके शरीर में फीवर आता है, आप जरा कोरिलेट करो, जब भी फीवर आता है आपकी भूख खत्म हो जाती है। यानी शरीर क्या कह रहा है, ना खाएं। आयुर्वेद में फीवर का सीधा इलाज क्या है, लंघनम, भोजन ना करें। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डाउन है, भोजन को अभी शरीर ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, तो आपका शरीर इंडिकेटर्स देता है कि अभी ना भोजन करें, है ना, क्योंकि फीवर को डाउन ना करें, फीवर से वो वायरस मरेगा। हम क्या करते हैं, फट से पैरासिटामोल खा लेते हैं। गलती करते हैं शरीर के साथ में, तो ये शरीर गलती करने से ठीक तो नहीं होगा। तो सारी बीमारी पिछले 100 साल में बढ़ी है या घटी है, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो जब भी शरीर के अंदर खतरा आएगा आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। और आपको मालूम है ना, क्या आपको मालूम है आपका शरीर केमिकल खाने के लिए नहीं डिजाइन हुआ था, क्या आपको मालूम है इस बात का, कॉमन सेंस है, इतना तो कॉमन सेंस सब में है।
योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल इंटेक। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते ना। बट आपको तो लिखा जाता है ना, सुबह इतनी गोलियां, दोपहर में इतनी गोलियां, फिर शाम को इतनी गोलियां। तो आपके शरीर में केमिकल डालने पे खतरा बढ़ेगा कम होगा, बताओ? अगर आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ, बढ़ेगा ना। तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा या मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? खतरा आया तो इम्यूनिटी बढ़ेगी ना, मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा। और खतरा केवल दवाइयों से ही नहीं है। दवाइयों से तो मेजर खतरा है। खतरा किससे है? आप जो भोजन कर रहे हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, खतरा। आप भोजन करते हैं तो भी खतरा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ता। अगर आप सांस लेते हैं, हमने वातावरण बदल दिया पिछले 50 साल, 100 साल में, तो आपका शरीर जिस वातावरण के लिए डिजाइन था, क्या वही वातावरण है अभी? तो आप सांस लेते हैं तो खतरा आता है कि नहीं आता? तो बार बार इम्यूनिटी बढ़ रही है, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं ना। बार 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 इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो तो हम ही करवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है? टॉलरेंस बढ़ाए, झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर सोच रहे हैं कोई दवाई या कोई फूड से ये ठीक हो जाएगा, तो अभी तक तो हुआ नहीं, उसी से तो खतरा आ रहा है। तो झेलने की क्षमता आपकी ज्यादा होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। झेलने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? 10 किलो का वेट उठाते हैं, कैसे झेलते हो? 10 किलो का वेट जब उठाते हो, कैसे झेलते हो? कैसे उठाते हैं मालूम है आपको? ध्यान दिया है? बाहर ध्यान देते ना, अंदर ध्यान नहीं देते। सांस रोक के उठाते हैं ना। सांस रोक के उठाते हैं ना। तो सांस रोकने की क्षमता, टॉलरेंस है आपका, बढ़ेगा। कुंभक तो करना ही पड़ेगा, चारा तो है नहीं। आज करो, कल करो, परसों करो, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय तक आपका शरीर कितना खराब हो चुका होगा, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा रिवर्स करने में। आप लोग समझदार लोग हो तो अपने बुद्धि से समझें। आपको पढ़ा लिखा गया दिया गया है, कुछ ऐसे अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं आपको, उससे कोई ठीक तो हुआ नहीं। इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करके तो ठीक हुआ नहीं कोई, है ना। उसका मतलब समझेंगे, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन रिवर्सेबल है। टाइम अलग अलग लग सकता Thank you, Swamiji. See, so this was just to demonstrate how when you fill up the Pran Shakti diagnosis form in the program, Swamiji has a look at them. उसमें एक फोटोग्राफ भी इंक्लूडेड होता है, तो बेस्ड ऑन दैट द प्रैक्टिसेस जो आप सीखते हैं उसमें बदलाव लाया जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑन दिस एंटायर प्लैनेट। ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ कुंभक थेरेपी में विच हैज बीन डिजाइन्ड बाय स्वामी राज विभू यहीं पर होता है। So we will take up a few questions. Suparna ji, though this program is for 16 years plus, she wants to ask about a son who has skin allergy, blocked nostrils, seasonal respiratory allergy, even hair are turning gray. है। हिस्टामिन इंटॉलरेंस है, इसको कहते हैं हिस्टामिन इंटॉलरेंस। दूसरा फैक्टर, लिवर कमजोर है। दो चीजें समझिए। हिस्टामिन इनटॉलरेंस, अगर इसको बिल्डअप करेंगे, टॉलरेंस बिल्डअप करेंगे जैसे बताया, तो एलर्जिक कंडीशन कम हो जाएगी। दूसरा, हमारे को लिवर और गट माइक्रोबायोटा को रिस्टैब्लिश करना। दो चीजें। तो लिवर को हम रिस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ फैक्टर बढ़ा सकते हैं, और गट माइक्रोबायोटा को भी रिस्टैब्लिश करने का कुछ तरीके हैं। बट क्या है कि बच्चों के केसेस में ना हम अलग तरीके से डील करते हैं। तो अपना नंबर छोड़िए, फिर हम इसमें ना 16 and 16 प्लस के ही लोगों को लेते हैं। बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम। कफ, वाई कफ इंक्रीज? कफ इज अ प्रोटेक्टिव थिंग। आपको थोड़ा समझ में बताता हूं, ये समझना सबको जरूरी है। सो व्हाट इज कफ? कफ इज अ थिक डेंस विस्कस लिक्विड कह लीजिए, है ना, जो कि शेप उसका आराम से चेंज, कफ वो होता है। ये ऐसा कोई भी विस्कस लिक्विड के साथ में जरा समझते हैं। कफ हमारा क्या होता है? जब भी इन्फ्लेमेशन कहीं पे आएगा तो कफ वहां पे अगर डलेगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। हाथ को खरोच लो। कफ का एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, और दैट इज घी।
वो क्या है? घी। तो आप हाथ को थोड़ा खरोंच लो, जलन होगा, थोड़ा घी लगाओ, जलन शांत हो जाए। ठीक है। अब दो चीजें बताऊंगा। आप कुछ इन्फ्लेमेटरी एजेंट खा रहे हो, एवरी केमिकल इज एन इन्फ्लेमेटरी एजेंट। सारी दवाइयां इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी इज फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी। ये बात आप समझो, कोई केमिकल भी रगड़ लोगे ना जलन होगा, हर केमिकल इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जब भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, किसी और वजह से भी बढ़ सकता है, मगर जैसे दवाइयों से बढ़ता है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे, मेटाबोलाइट्स कम होंगे, तो उससे भी ज्वलनशीलता आएगी। तो आपका शरीर जलन को कम करने के लिए क्या करेगा आप बताओ? अंदर कैसे घी लगाएगा वो? कुछ काम करेगा, क्या करेगा? क्या क्या करेगा? लिवर अगर इंफ्लेमेटरी लिवर में होता है तो फैट क्रिएट करेगा, उसे कहते हैं फैटी लिवर। ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ कुछ ऐसा बायोकेमिकल उसको बनाना पड़ेगा, जैसे कॉर्टिसोल है, सेरोटोनिन है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करेगा। ठीक है। लंग में जैसे, या टिश्यू स्पेसेस में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वहां वो जमावट करेगा, ब्लॉक करने के लिए कफ बढ़ाएगा। आपके शरीर में कफ फैट से ही बनता है, क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो क्या कफ बढ़ना प्रॉब्लम है? कफ बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कफ तो आप एनिस्टाइलसिस्टीन लेके नेबुलाइज करके उसको निकालने की कोशिश करो, मगर क्या ये सही काम है गलत काम? क्योंकि आपने इन्फ्लेमेशन को तो कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आखिरकार स्टेरॉइड देना पड़ता है। और स्टेरॉइड कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इनफैक्ट उससे हालत खराब और खराब और खराब होती जाती है। तो आपने शरीर की क्षमता इन्फ्लेमेशन को कम करने की नहीं बढ़ाई, जो कि सोल्यूशन है। केवल कफ को निकालने से सोल्यूशन नहीं मिलता। कफ तो अच्छी बात है ना, कुछ खतरा है जिसको निपटने के लिए शरीर कफ बना है। तो केवल उसको निकालना क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप सोचें जरा, वो सोल्यूशन नहीं। इन्फेक्शन में भी कफ बनता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, बैक्टीरिया के कारण उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। मगर वो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं तभी तो कफ उसको निपटाने की, फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो कफ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि कफ पिघालने के लिए केमिकल है तो कहते हैं कफ प्रॉब्लम है, इसको निकाल। मगर कफ को आप निकालेंगे ज्यादा तो शरीर की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। ज्यादा कफ होने पे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करना, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। हिस्टामिन इंटॉलरेंस आ गया तो टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो कोई दवाई नहीं करेगी, कोई फूड नहीं करेगा। चाहे कोई दवाई हो, केमिकल हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो, आपको अपने शरीर पे, आपका शरीर बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। इस पे थोड़ा काम करेंगे, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। Can Kumbhak help in curing hemorrhoids? देखो, हेमोरॉइड्स का रीजन क्या है? यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ क्यों, व्हाई द बॉडी इज नॉट एबल टू क्योर हेमोरॉइड। सभी में तो हेमोरॉइड्स नहीं होता ना। आपकी ही कंडीशन में 10 लोग अगर रह रहे हैं तो सबको तो हेमोरॉइड नहीं होता ना। तो व्हाई हेमोरॉइड हैज हैपेंड इन यू, है ना? व्हाई हेमोरॉइड हैज हैपेंड इन, बिकॉज योर डिटॉक्स फैक्टर इज वीक। जिस इंसान के शरीर में, दो चीजें बता रहा हूं, डिटॉक्स फैक्टर वीक होगा, एक्सलेशन एक्सलेशन पे कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, जिस इंसान का आ, इसे आप कह लीजिए कि
अपान वायु कहते हैं इसको। वीक होगा, उसको हेमोरॉइड होने के चांस होंगे। अपान वायु स्ट्रेंथ ऑफ एक्सलेशन होता है, मगर केवल एक्सेल करके वो स्ट्रेंथ आप नहीं बढ़ा सकते, कुंभक करके एक्सलेशन की स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर है इसमें, हमेशा याद रखिए, जिस इंसान के शरीर में पित्त विकार होगा या वात विकार होगा, दोनों का कोरिलेशन मेटाबॉलिक वीकनेस के साथ में, उनको हेमोरॉइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप रीजन को अगर पकड़ेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। हेमोरॉइड ज्यादा परेशान, जैसे ग्रोथ कहीं पर भी बहुत ज्यादा हो गया, इन्फेक्शियस हो गया ग्रोथ, तो एक सर्जरी उसका एडजस्टमेंट का उपाय है कि उसको काट के निकाल दो, मगर वो तो दोबारा हो जाएगा। तो सर्जरी कोई सोल्यूशन नहीं होता, सर्जरी एडजस्टमेंट होता है, उसको जरूरत पड़ने पे कर लेना चाहिए। बट देन यू शुड क्योर द रीजन फॉर हेमोरॉइड, तो ठीक करना ही पड़ेगा। वो करेंगे तो दोबारा हेमोरॉइड नहीं होगा। हम्म। I have skin allergy and I experience breathlessness only in summers. Otherwise, I'm fine. स्किन एलर्जी। And breathlessness only in summers. हाँ, ये बिल्कुल ऑपोजिट केस है, और ये क्यों है आपको समझना पड़ेगा। ज्यादातर लंग का इशू, ब्रेथलेसनेस का इशू कोल्ड सीजन में ज्यादा आता है। हम्म। अच्छा, समर सीजन में किसको आ सकता है? अच्छा, आपने कभी सुना एक नाम, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? ये कभी नाम सुना? देखो, गर्मियों में आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम दो तरीके से देखना चाहिए। सॉरी, ये दो करने पे ना बलून उड़ते हैं। दो दो तरीके से देखिए, आपको ना समझ में चीजें आनी चाहिए, ये हमेशा याद। आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं करते, वो आपका चॉइस है, मगर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ड को रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ कैसे काम करती है वो समझना जरूर है। आपको मालूम है गर्मियों में लंबी हो जाती है सांसें, ठंड में छोटी होती है। क्या ये कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, हम तो बाहर देखते अंदर देखते नहीं, इसलिए हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एक काम करें, एसी में अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, एसी को चिल करके ब्रेथ को ऑब्जर्व करो और बाहर निकल जाओ। आज के टाइम पे तो नॉर्थ इंडिया तो एकदम पक रहा है। हाँ, बाहर निकल जाओ जरा, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इट विल स्लो डाउन, आपका ब्रेथ स्लो हो जाएगा, सुस्ती आने लग जाती है। जितना ब्रेथ स्लो होगा उतनी सुस्ती आने लग जाएगी। तो दो तरीके की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो होता है लंग का स्ट्रेंथ, लंग का स्ट्रेंथ, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वह हीट बढ़ने की प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर हीट बढ़ने की। ये दो समझो, दो समझो। अब लंग के स्ट्रेंथ के रूप में समझते हैं। अगर आपकी लेंथ की, लंग की स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या आप फास्ट ब्रीदिंग कर पाएंगे? स्लो ब्रीदिंग चल जाएगा, फास्ट ब्रीदिंग नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। और ठंड में क्या होगा, आपको फास्ट ब्रीथ करने की जरूरत होगी, तो लंग की स्ट्रेंथ जब भी कम होती है, जैसे ही कम हो जाती है, आपको ठंड में प्रॉब्लम आएगा। तो ये डायरेक्टली लंग की स्ट्रेंथ के साथ। दूसरा पार्ट जो है ना, दूसरा वाला पार्ट है, सपोज करो लंबी सांस लेनी है और आपके शरीर में हीट बढ़ जाता है सडनली। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लंबी सांस लेनी है, गर्मी आ गई और आपके बॉडी में हीट बढ़ जाता है, तो इंपैक्ट क्या होता है? लिवर इंपैक्ट होता है। लिवर जब भी इंपैक्ट होगा उसको स्किन इश्यूज आएंगे, लिवर जब भी इंपैक्ट होगा उसको स्किन इश्यूज आएंगे।
यहां पे लंग कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपकी ब्रीदिंग को लेके। वो गर्मी को कम करने के लिए फास्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे उसको ठंड में एक्सपीरियंस होता है, जैसे उसको ठंड में एक्सपीरियंस होता है। तो वो टसल आएगा, गर्मी के कारण लंबा होगा, मगर बॉडी उसको उल्टा करने की कोशिश करेगा, तो टसल है, लड़ाई है बाहर की और शरीर के अंदर की। तो पित्त प्रकृति वाले जो भी होंगे ना, जिनके बॉडी में हीट बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, उनको थोड़ी गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम, उनको गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको ठंड में प्रॉब्लम। कफ बेसिकली स्ट्रेंथ से रिलेट करता है, पित्त हीट से रिलेट करता है। और दोनों ये टसल के कारण आपको सांस में डिफिकल्टी आ रही है, वो एक टसल है जिसकी वजह से डिफिकल्टी है। ये अगर समझ में आएगा आपको तो पता चलेगा कि अच्छा अभी करना क्या है। तो जिनको ठंड में प्रॉब्लम आती है उनको लंग का स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जिनको गर्मी में प्रॉब्लम आती है उनको बॉडी को ईज में ठंडा करने की जरूरत। ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस। Uh, thank you, Swamiji. There is one last question about COPD, vitamin deficiency, and IBS related issues. इसमें दो चीजें हैं। जैसे एक पार्ट मैंने बताया, सीओपीडी जिनको भी है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जिनको भी है, और कहीं ना कहीं आप देखो कि आपका डाइजेशन और वो भी रिलेटेड है। क्योंकि हम हर बीमारी को एक सिंगुलैरिटी की तरह से देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। अगर इसे तीन तरीके से देखा जाए, तीन एवेन्यूज होने चाहिए किसी बीमारी को देखने के, तब जाके आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये दो, इसको तीन कारण बताने की जगह मैं दो में बता रहा हूं ताकि आपको आसानी लगे, तीसरे को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पे वो दो के अंदर कवर हो जाएगा। किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। दूसरा, टिश्यू डीजेनरेशन की वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। आसानी से, आसान भाषा में, इन्फ्लेमेशन से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपके केस में ये ऑब्स्ट्रक्शन से है, वही ऑब्स्ट्रक्शन जो सीओपीडी में भी दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम कफवात दोष की है। ये प्रॉब्लम क्या है? कफवात दोष की। यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, जठराग्नि कमजोर। सीधी सी बात, आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर दो, ये दोनों ही चीज इंप्रूव हो जाए। आपके शरीर में बैलेंस वे में गर्मी बढ़ानी पड़ेगी, ये दोनों ही चीज ठीक हो जाए। गर्मी से कफ पिघलता है, गर्मी वो कफ की वजह से ही जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, डिपोजिशन है, उसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं। और जैसे चाय की छन्नी होती है ना, उसमें मलाई जम जाती, चाय की छन्नी में मलाई जमती है ना, ऑब्स्ट्रक्शन से अब चाय नहीं छन रही, तो प्रेशर डालोगे तो छनेगी। तो प्रेशर इकोसिस्टम अगर अपने शरीर का ठीक कर लेंगे, दोनों ही चीजें ठीक हो जाएंगी। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. Uh, we've covered a lot of questions